मिलिंद जी ने उसे अभी कहा कि सरस्वती का वास वहाँ माना जाता है। कश्मीर को आज भी हम प्रार्थना में कुछ इस तरह याद करते हैं, नमस्ते माँ शारदे काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या ज्ञानम च देहि मे। वो साक्षात शारदा का वास था, वहाँ शारदा पीठ थी। काशी, जो कि हमारे अध्ययन का एक बड़ा उत्तम केंद्र माना जाता है, वहाँ भी स्नातकोत्तर छात्र अपनी दीक्षा के बाद 4 पग कश्मीर की दिशा में चलते थे, इस सांकेतिक रूप में कि अब इसके बाद का अध्ययन कश्मीर जाके होगा। वहाँ शारदा पीठ थी। आदिशंकर जब केरल से कालड़ी से चलते हैं तो वहाँ जाकर वहाँ की विद्वत परिषद के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय देकर अपनी शास्त्रार्थ परंपरा में पराकाष्ठा तक पहुंचकर दक्षिण द्वार खुलवाते हैं और पीठासीन होते हैं और शंकराचार्य बनते हैं कश्मीर जाकर। और ये कश्मीर ही नहीं, कश्मीर से बहुत थोड़ी सी दूर, less than 100 kilometers as a crow flies, as they say in English, is a valley called Swat. You must have heard of Swat in a different reference altogether. You know, these days it is known by a name called Mullah Radio. His name is Mullah Fazlullah. He runs Tehreek-e-Taliban Pakistan and right now is in Afghanistan trying to harass Pakistani army. That is the calling card of Swat these days. That Swat produced Panini, who wrote Ashtadhyayi, which till date is considered as the most scientific way of treating grammar. Flawless. Patanjali was born in Kashmir. It's not just a brand name of Baba Ramdev. His Yoga Sutras is what defines us and our cultural heritage to the Western world, who would like to identify us with just one word, and that's yoga. That's Patanjali. Came from Kashmir. Sharangadev, who's considered to be the father of Indian music, both Hindustani classical and Carnatic. When he introduces himself, he says, Astig Swastik Grahakula Vansham Srimad Kashmir Sambhavam. He names Kashmir with a prefix Srimad. That's how he honors his motherland. A lot of Sanskrit scholars feel that besides the 4 Vedas, if in the entire body of Sanskrit literature we were to classify, हम अगर किसी अन्य किसी कृति को 5वां वेद कहना चाहें तो वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हो सकता है। वो इतना प्रखर विद्वत शास्त्र है कि वो 5वां वेद तुल्य है। उसको यदि पढ़ना समझना है तो उस पर एक टीका लिखी गई जिसका नाम है अभिनव भारती। उसके बिना उसको पढ़ना समझना असंभव है, ऐसा संस्कृत विद्वान मानते हैं। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। वो अभिनव भारती के रचयिता थे आचार्य अभिनव गुप्त। इसलिए बहुत से विद्वान अभिनव भारती को भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कश्मीर के थे और अभिनव भारती उनकी कुछ 46 महान कृतियों में से एक सामान्य कृति थी। उनका असली परिचय उनकी कृति तंत्रालोक से होता है, जो कश्मीर शैव मत का आधार ग्रंथ है।
उन्होंने अभिनव गीता लिखी, उनकी गीता पर टिप्पणी है। उन्होंने रस पर एक सिद्धांत दिया जिसको आज विश्व के 80 विश्वविद्यालयों कम से कम पढ़ाया जाता है, भारत में उनमें से कोई एक विश्वविद्यालय नहीं है। He was perhaps the tallest aestheticians this land produced. On aesthetics, he is still considered the last word. And he is not the only one. He represents a lineage. Anandvardhan, lineage of grammarians, Kayyat, Ruyak, Bhattalolat. They're all from Kashmir. Kshemendra. They say if you take out the literature in Sanskrit produced in Kashmir out of the body of Sanskrit literature that we have today, they wonder what will be left. Why I'm saying all this to you is to emphasize just one point, that Kashmir is not a piece of geography. It is not a contest for a piece of real estate. It is the source of, the fountainhead of pretty much anything and everything that we define ourselves as Indian, that is defining about our identity. And if we are inheritors of a certain heritage, a certain tradition, that we take pride in the fact that it is continuous for several millennia, then Kashmir is the keystone there. That is, my friends, Kashmir in a very brief, very small essence kind of representation. And it is not just about a Vedic Hindu past. A lot of those who consider Buddhist thought separate from Hindu thought. I don't. I think these are all Hindu thoughts and Indian thoughts, and there's nothing Hindu. Vedas don't have a word Hindu. Mahabharata doesn't have a word Hindu. Gita doesn't have a word Hindu. Puranas don't have a word Hindu. Hindu is a nomenclature we received as inhabitants of this land, period. It is not about a certain denomination. ये किसी मत विशेष की संज्ञा नहीं है, हमने बना दी है। तो बौद्ध विचार में यदि उसकी दो धाराएं हम लोग सब मानते हैं, हीनयान और महायान, महायान का जन्म कश्मीर में हुआ। महायान को मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान ले जाने वाले विद्वान कश्मीर से आए। कुमारजीव कश्मीर से गए, पद्मसंभव कश्मीर से गए। इस विचार का प्रतिपादन वहां हुआ। कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल वहां बुलाई, 6 महीने उनमें शास्त्रार्थ हुआ। नागार्जुन आंध्र से गए थे कश्मीर, वैष्णव ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रतिपादन किया महायान बुद्धिज्म का। और कश्मीर में विहार बने। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्वयं अशोक ने बनाई। वहां पर एक स्थान है बिजबिहारा, कर्नल साहब जानते होंगे, उसका पूर्व नाम है विजयेश्वर विहार। यह अशोक के समय में बना, वो अपभ्रंश होके बिजबिहारा हो गया, जैसे वराह मूल अपभ्रंश होके बारामूला हो गया। और अब तो किसी को प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी, नाम आग्रह करके बदले जा रहे हैं। अनंतनाग को इस्लामाबाद तो बहुत पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। अनंतनाग किस दृष्टि से
फारसी अरबी लगता है भाई, तो कैसे पचेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कश्मीर के प्रमुख शहर श्रीनगर के बीचों बीच एक पर्वत है जिसको शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि वहां ऊपर एक शंकराचार्य मंदिर है जिसे गोपादित्य ने ईसा से 2 सदी पूर्व सबसे पहले बनाया था। उस पहाड़ का नाम अब तख्त सुलेमान कर दिया है। वहां एक और उससे थोड़ा छोटा पर्वत है जिसको हम हारी पर्वत कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है शारी, जो मैना के लिए इस्तेमाल होता है। मैना पक्षी के लिए शारी शब्द है। श का ह हो जाता है भाषांतर में, जैसे हफ्ता हो गया, सप्ताह से हफ्ता हो जाता है। तो उस हारी पर्वत पर एक स्वयंभू शिला पर श्री यंत्र अंकित है, इसलिए वहाँ शारिका माँ का स्थान है। हमारे लिए वो दिव्य तीर्थ है। उसका नाम बदल के कोहे मारान कर दिया है। और ये चलिए, सुलेमान तो फिर भी उनका एक राजा था जिसको वो मानते हैं। कोहे मारान तो गाली है। कोह कहते हैं एक पहाड़ को, वो पहाड़ तो है। जैसे कोहे नूर का मतलब है अ माउंटेन ऑफ इल्यूमिनेशन, which is what the diamond was named after. Now, Kohe Maran, Maran in Persian is serpents. So, it is abused in even this new name as the hillock of serpents, because this was one of the most unique peethas where Vaishnava Tantra was practiced. You must have heard of Tantra Agamas, which is essentially a lineage of Shaiva philosophy. There is Tantra philosophy even in Vaishnava thought, and this is one of the unique places. You don't find too many such places anywhere in the country. ये उसकी पीठ है। उसका नाम कोहे मारान कर दिया। एक जगह है जिसका नाम है विचारनाग। वो स्थान जहाँ कश्मीर के ज्योतिषी हर साल मिल करके अपना पंचांग तय करते थे, काल गणना करते थे। उसके विषय में कुछ मतभेद हो तो उसका संस्करण होता था और एक कंसेंसस बनता था। उसका नाम इसीलिए विचारनाग पड़ा। उसका नाम कर दिया है फिरदौस। तो उस स्थान के नाम और पहचान बदली जा रही है। और ये स्थान, ये परंपरा कितनी पुरानी है। मैंने अभी ज्योतिषियों का जिक्र किया, तो हमारा पंचांग कहलाता है सप्तऋषि संवत। उसका ये 5093वां साल चल रहा है, 5093rd ईयर। इस देश में शक संवत है, विक्रमी संवत है, ईसवी संवत है, बहुत से संवत हैं। शायद इतना पुराना कोई नहीं होगा। ऐसी जगह के नाम और पहचान बदली जा रही हैं। ऐसी जगह की नाम और पहचान की एक सबसे बड़ी उदाहरण किसी भी जगह का होता है भाषा। तो कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, और वो कोई छोटी मोटी भाषा नहीं थी। जब भारतीय संविधान बना तो संविधान की 8वीं सूची में 14 भाषाएं चिन्हित की गईं, जिनको रिकग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि ये 14 भारत की भाषाएं हैं। उनमें कश्मीरी एक है, मराठी भी है, गुजराती भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है, बंगला है, उड़िया है, असमिया है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू भी है, कश्मीरी भी है। आपको ये जानकर पता नहीं कैसा लगेगा, उस भाषा में आज तक किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। उस भाषा की टेक्स्ट बुक तक नहीं है। उसका कोई टीचर नहीं है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें कोई अखबार नहीं छपता, उसमें कोई मैगजीन पत्रिका नहीं छपती।
आपने किसी समाज को अपनी ही भाषा को मारते देखा है? तो कश्मीर जाइए। अगर आपको आज कश्मीरी पढ़नी हो तो आपको 100 रुपए का नोट निकालना पड़ेगा और उसमें उर्दू नस्तालिक लिपि में कश्मीरी में लिखा होगा, वो आप पढ़ सकते हैं। जो कश्मीरी राष्ट्रवाद के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने अपनी भाषा का यह हश्र किया है। पूरे देश में भाषा के नाम पर आंदोलन हुए, कश्मीर में नहीं हुआ। कश्मीर ने कौन सी भाषा चुनी? उर्दू, जो पैदा दिल्ली और लखनऊ के बीच हुई, जिसके निषेध के लिए 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में 6 लोगों ने जान दे दी और बांग्लादेश के बीज वहां पड़े, क्योंकि उर्दू देश के विभाजन का टूल था, मोबिलाइजेशन की भाषा थी। उसने स्वयं को एक पहचान दी थी कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी पहचान उर्दू है। और उर्दू की पहचान को लेकर के मुस्लिम लीग ने विभाजन का आंदोलन चलाया और फिर पाकिस्तान जाकर उन्होंने ऐसा ही किया कि हम पंजाबी हैं लेकिन पंजाबी नहीं, मुसलमान हैं। हम सिंधी हैं लेकिन पहले मुसलमान हैं। हम बलोच हैं, पठान हैं, पहले मुसलमान हैं। इसीलिए हम बंगाली भी हैं तो नहीं, उर्दू में काम करेंगे। तो बंगाल के बेटों को लगा कि साहब मुसलमान तो हैं लेकिन साहब बंगाली बंगला नहीं छोड़ेंगे। तो 47 में पाकिस्तान बनाया था उसी उर्दू के नाम पर, और 52 में ढाका में आंदोलन करके जान दे रहे थे। 21 फरवरी 1952 में यह हुआ। 1968 में जब यूएन ने वर्ल्ड मदर टंग डे की घोषणा की तो उन्होंने 21 फरवरी को चुना कि दुनिया में अपनी मातृभाषा के लिए जान देने वाले आंदोलन से अगर हमको प्रेरणा लेनी है तो वो बंगाल का, ईस्ट बंगाल का, ढाका का आंदोलन है। ये उदाहरण हमारे समकालीन इतिहास में है, लेकिन कश्मीर ने उर्दू को चुना। और यहां से आपको दिखाई पड़ना शुरू होना चाहिए कि कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है। भाषा की बात करूं तो